Good morning, students. Today we are going to study about the area of path. You know that when we are moving inside the garden, at that time outside that garden means outside that garden that they are making some that road to that walk the people and to see inside the area. Okay, so that type of a path we have to construct it. Means it is around. Sometimes it is around the garden. Sometimes it is that path is passing through the garden. Sometimes that vertical and horizontal path is also passing through the garden. So how to find the area of that figures that we have to study today. Now here given some figures that area of rectangular path means if area is that path is constructed around the garden, then sometimes it is passes that path is passes through the garden in horizontal or vertically, as well as two roads are crossing there inside the garden. So just like are that square. So how to find the area of these path that we have to study here. Okay, so for that we have to that I am taking the problems from exercise 8C. See, in the first problem, a rectangular park is 35-meter long and 17-meter wide. 35-meter long और 17-meter wide एक park है. A path of width 2.5 meter is constructed on all sides outside the park. Find the area of the park. क्या है? एक पार्क दिए वाले आपको 35 मीटर लॉन्ग और 70 मीटर वाइड, उसके बाहर के साइड से 2.5 मीटर का रोड कंस्ट्रक्ट किया वाला है जो पब्लिक को घूमने के लिए. अब ऐसा रहने के बाद व्हाट इज द मींस वो जो पाथ है वो पाथ का एरिया आपको निकालना है. तो पाथ का एरिया निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, पूरे सबसे पहले जो गार्डन है उसका एरिया निकालो. दोनों लेंथ और ब्रेथ में क्या हो जाएगा, विद 2.5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. बराबर है. लेंथ ऑफ द गार्डन, न्यू गार्डन दैट इज न्यू रेक्टेंगल दैट विल बी इंक्रीज बाय 2.5 मीटर टू द लेफ्ट साइड as well as 2.5 meter to the right side. Its breadth also increases 2.5 meter left side up or down, what may be there. Now see here one exact example. Length of path given that 35 meter, breadth given 70 meter and width of path given 2.5 meter. Okay, these are the initial that measurements of that path given. So see here I have constructed. First of all, you construct the rectangle like this. That name the outer rectangle as you wish, A, B, C, D. अब देखो outer जो है ये जो ओरिजिनल जो पार्क है वो ये है जिसका इसकी लेंथ 35 मीटर है और ब्रेथ 70 मीटर है. बराबर. अब इसके साइड में और आउटसाइड, तो आउटसाइड से क्या करना है आपको 2.5 मीटर का रास्ता तैयार करना है. तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से रास्ता तैयार हो जाएगा चारों ओर से. बराबर है. तो जो गार्डन जब रास्ता बनाने के बाद जो लेंथ है गार्डन की वो कितनी हो जाएगी, फिर इनिशियल लेंथ वाज 35 मीटर, तो इधर देखिए 2.5 मीटर बढ़ेगी लेंथ और इधर 2.5 बढ़ेगी, इसलिए 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 विल बी इंक्रीज इन द लेंथ. तो लेंथ में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, वो इधर से 2.5 और इधर से 2.5, ऐसा टोटल 5 ओवर 35 में ऐड करने के बाद आपको आउटर जो रेक्टेंगल मिल रहा है, आउटर जो पाथ मिल रही उसकी लेंथ आपको मिलेगी एंड दैट विल बी 40 मीटर. ओके. सिमिलरली इनिशियल ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 70 मीटर, सो इधर भी 2.5 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 2 मींस लेंथ और ब्रेथ में दैट वी हैव टू ऐड दिस थिंग्स. इधर 2.5 इधर 2.5 below 5. So if you add 5 to the breadth 17, then you will get 22. Okay. So that new length of the rectangle, that will be new length of the path will be 40 meter and that is breadth 22 meter. Now we have to find out the area of this path. That is the area of path. तो area of path निकालने के लिए आपको आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और उसके बाद में उसमें से इनर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है. You will get easily area of path. Now see here area of path, area of quadrilateral ABCD,
PQRS देखो this formula is same, length multiply breadth minus length multiply breadth. Here 40 multiply 22, outer range first of all input, minus 35 multiply 17. Here 880 minus 595. After the subtraction you will get 285 square meter is the area of this part. है क्या नहीं? जैसे कि आपका जो अपन घर बना देते हो, घर के बाजू में इधर से 2 मीटर 2-3 फीट, इधर से 2-3 फीट, पीछे से 2-3 फीट, ऐसा जब छोड़ते हैं अपन जाने आने के लिए, तो उसी तरीके से एक्चुअली तुम्हारा प्लॉट उतना रहता है, उसके अंदर अपन घर बांधते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरे प्लॉट का तो आउटर का पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, फिर अपना घर कितना है उसका एरिया निकालना पड़ता है, फिर जाके आपको एम्प्टी प्लेस जो रहता है उसका एरिया मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ए पाथ इन मैथमेटिक्स. ओके, नाउ अनदर प्रॉब्लम सी हियर in this case. Now in this case that the road was constructed outside, but what happens sometimes they are making the road inside. दूसरे के प्लॉट पे जाते रहे अपने, तो पार्क जो है, पार्क आप जो पार्क है वो ठहरे वाली है, तो उसके अंदर से रोड बनाना है. तो जो ओरिजिनल पार्क रहेगी वो आउटर कंसीडर करने का, इनर जो मिलता है वो इनर कंसीडर करने का. ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम सी. A rectangular grassy plot is 75 meter long and 745 meter broad. 75 meter length दी हुई है, 45 meter broad. एक rectangular grassy plot है. It has a path of width 2 meter. All around it on the inside. Inside का मतलब होता है अंदर से. ये outer part हो जाएगा और फिर अंदर में क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन रोड. Find the area of the path and the cost of constructing it at ₹175 per meter. तो आपको सबसे पहले एरिया निकालना है और उसके लिए जो कॉस्ट रखी वाली है ₹175 एक स्क्वायर मीटर के लिए कॉस्ट है, तो कॉस्ट निकालना है. तो सबसे पहले क्या किया उसने, अपने को आउटर का उसने एरिया दिया वाला है, इनर का, इनर की लेंथ और ब्रेथ निकालना है आपको. लेंथ ऑफ प्लॉट 75 मीटर ओरिजिनल एंड इट्स ब्रेथ इज 45 मीटर. ओके, अब इसके अंदर से बनाना है, इधर से इधर से इधर से ऐसा जाके. तो इस तरीके से मैंने अगर इसको रोड बना दिया, ये इस तरीके से रोड बनाने का, तो अंदर के साइड से, बाहर के साइड से नहीं. तो वो रोड हो गया समझो ए बी सी डी. बनाने के बाद आपको जो रेक्टेंगल मिलेगा ये इस तरीके से मिलेगा. अब अंदर से जब रोड बनाते हैं तो जो इनर रेक्टेंगल रहता है उसका जो लेंथ और ब्रेथ रहती है वो कम हो जाती है. अब 2 मीटर का पाथ है तो इधर से 2 मीटर लेंथ कम हो जाएगी, इधर से 2 मीटर लेंथ कम हो जाएगी. 75 मीटर में से 2 + 2 4 को निकालने के बाद जो इनर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी बनेगी 71 मीटर. ओके, उसके बाद ब्रेथ, टोटल ब्रेथ दी वाली आउटर रेक्टेंगल की 45, इधर से 2 जाएगा, इधर से 2 जाएगा, दैट इज 4 मीटर. इफ यू सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम दिस 45 you will get 41 मीटर ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल. ओके, ये सब करने के बाद फिर सीधा सीधा फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, PQRS minus ABCD. Length multiplied breadth minus length multiplied breadth is the formula to find out area. So 75 minus 45, outer area 75 minus multiply 45 minus 71 multiply 41. After calculation you will get 464 square meter is the area of this path. पाथ का एरिया क्या मिलेगा आपको 464 स्क्वायर मीटर. नाउ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब ये ऐसा एक पाथ बनाने का है अपने को, उसमें गट्टू वगैरह कुछ डालने का है, तो इसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है 175. तो इतने एरिया को 175 से मल्टीप्लाई करने के बाद 81,200 रुपीज कॉस्ट लगेगी. तो जो अच्छा अगर वो बनाने का है साइड का रोड, अपने घर के साइड का या पार्क के साइड का, तो उसके लिए क्या करना है 1,200 रुपीज आपको पैसे देना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली कीप इन माइंड, आउटर का एरिया निकालना है, इनर का एरिया निकालना है, दोनों की सबट्रैक्शन लेना है. दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो कंस्ट्रक्ट के वाला जो एरिया पाथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आउटसाइड से कर रहे हैं कि इनसाइड से कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. आउटसाइड से कर रहे हैं तो उसमें एडिंग करने का जो पाथ का ये देते हैं, विड्थ देते हैं वो. अगर इनर साइड से कर रहे हैं तो सबट्रैक्शन करने का आउटर साइड से. ओके,
See, that I will take again 2-3 problems. You write this carefully in notebook as well as study properly. Okay.